سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو ہمیشہ سے آپ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ نیچے اس کی تفصیلات ہیں، لوگوں کو جوڑے بھی مضبوط بھی کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے حالات کے پیش نظر۔ ناظرین گرامی آئیے پہلی خبر کی جانب آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ایک ہندوؤں کے معاملے کو مسلمانوں پر ڈال کر کے منظم سازش رچی جاتی ہے ایک ماحول بنانے کی۔ ایک اور ٹکڑا بھی ہے، دیکھ لیجئے۔ دراصل ڈی جے ہریش کا قتل کیا گیا ایک مندر کے سامنے، اور قتل کرنے والا اس کی گرل فرینڈ، یا اس نے جس سے شادی کیا اس کی گرل فرینڈ تھی منیشا، اس کا بھائی تھا دین دیال۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا قتل کیا تھا۔ وجہ اس کی صرف یہ تھی کہ وہ اس کی بہن کا بوائے فرینڈ تھا، یا وہ دونوں کا عشق چل رہا تھا۔ فرینڈز میں سے، اس کے دوستوں میں سے نریش ہے، وینکٹیش ہے، روہت ہے، وینکٹ ہے، اکشے ہے، انیکیت ہے، منیش ہے، سائنس ہے، راجندرا ہے۔ اور پولیس نے باقاعدہ جو پولیس انسپیکٹر گوری پرشانت اس سلسلے میں تفصیلات فراہم کی ہے۔ لیکن اس خبر کو کیسے پیش کیا گیا، آپ ان اخبارات کے ٹکڑوں کو دیکھ لیں۔ اس میں لکھنے والا نے لکھا کہ جو ہے ہریش کا قتل ہو گیا، اور ہریش کو قتل کرنے والا مسلمان ہے، کیونکہ اس کی جو ہے مسلم دوست سے اس کی ابھی حال ہی میں شادی ہوئی تھی، جبکہ نہ اس کی شادی ہوئی ہے، نہ ہی اس کی گرل فرینڈ کا نام کوئی مسلمان ہے۔ اس کی گرل فرینڈ کا نام تو منیشا تھا، اور قتل کرنے والا اس کا بھائی اور اس کے دوست تھے۔ لیکن اس معاملے کو الگ الگ انداز میں پیش کر کے پوری طرح سے جو ہے حالات خراب کرنے کی کوشش ہوئی۔ یہ حیدرآباد سے آ رہی خبر ہے ناظرین۔ یہ صورتحال ہے اس وقت حالات مسلمانوں کے خلاف بنانے کے لیے، اور منظم طریقے سے، منظم سازش کے تحت۔ اب اس طرح کی خبریں نہ اس کی حقیقت بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور میڈیا چاہتا ہے کہ یہ خبر اور فیک خبریں ایسی پھیلتی رہے اور مسلمانوں کے خلاف ماحول بنتا رہے۔ اسی طرح کی ایک اور خبر دبا دی گئی بلاسپور کی، جہاں پر ایک شخص نے اپنی بیوی کو 6 ٹکڑوں میں کاٹ دیا، اور 2 مہینے تک اس کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے ایک ٹینک میں رکھا رہا۔ اور ٹینک کا بھی اس وقت جو پانی کا جو ٹینک آتا ہے وہ بھی آپ اس وقت تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے۔ پون سنگھ اس شخص کا نام ہے۔ 5 جنوری کو یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ دینک بھاسکر اور بہت سارے اخبارات نے اس خبر کو شائع کیا ہے۔ اتنا بھیانک قتل ہوا اپنی بیوی کا، اور 2 مہینے تک ٹینک میں اس کو رکھا گیا، صرف جو ہے اس کے کردار پر شک کرتے ہوئے۔ لیکن کیا آپ نے کسی میڈیا میں ڈیبیٹ ہوتے ہوئے دیکھا اس بھیانک قتل کے سلسلے میں؟ نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی ہے کہ اس کا نام پون سنگھ ہے، اور اس کا دھرم جو ہے وہ خاص ہے، اس وجہ سے اس کو نہیں دکھایا جائے گا، ڈیبیٹ نہیں کیا جائے گا، اس کے ہولناکی کو بیان نہیں کیا جائے گا، اس کی اس کی جو ہے تحقیقی خبر کو لایا نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس میں بدنام جو ہوں گے وہ دوسرا مذہب ہوگا۔ اگر یہیں پر کوئی اور ہوتا، اس کا نام عبدل ہوتا یا اس کا نام کوئی اور ہوتا، تو جو ہے آپ دیکھتے کہ کس طرح ہنگامہ مچا دیا ہوتا۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی کہ کس طرح سے بنگلورو میں 2 اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے انٹالرنس یا پھر جو ہے تشدد کا ماحول کس طرح بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں پر آپ ایک شخص کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ ایک گاڑی سے چابی نکال رہا ہے، اس کی ویڈیو بھی ہے، وہ دکھا سکتے ہیں۔ دراصل وومنس ڈے کے موقع پر یہاں کی کچھ خواتین نے جو ہے بندرگٹہ روڈ سے یہاں پر جا رہے تھے، نائس روڈ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، بائک رائڈرز، بائکنگ کرنے کے شوقین لوگ، اور 2 خواتین اس طرح اس میں شرکت کر کے واپس آ رہے تھے، اور نائس روڈ کے ایک کنارے کھڑے ہوئے تھے پانی پینے کے غرض سے۔ لیکن سامنے ایک وکیل کا گھر تھا، وہ دوسری جانب سے چلتے ہوئے آیا، ان سے کہا کہ آپ یہاں کھڑے نہ رہیں، اور میرا ایک گھر کا سامنے والا حصہ، بلکہ گیٹ دور ہے، گیٹ اس کا گھر تو دوسری جانب موجود ہے۔ یعنی کہ اپنے آپ کو وکیل کہتے ہوئے اس وکیل نے گنڈا گردی کی حد کر دی تھی کہ وہ کہاں سے چل کر کے آ رہا ہے، اور یہ
बाइक राइडर्स लड़कियां खड़ी कहाँ हैं, उसकी चाबी लेकर के ये वापस चला जाता है और 7 घंटे तक उनकी चाबी वापस नहीं देता, और ये लड़कियां वहां पर जहां आसपास कहीं कुछ नहीं था परेशान हो जाती हैं। बाद में जो पुलिस आकर के 7 घंटे के बाद वो जो है चाबी उनको वापस दी जाती है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी की, किस तरह से परेशान करने की कोशिश होती है। अब सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या इस गुंडे वकील के खिलाफ जो है सजा होगी, क्या पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी, कहते हुए मुख्तलिफ अंदाज में सोशल मीडिया में इस वक्त जो है तबसरे करते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है। इसी तरह का एक और मामला सामने आया कि एक रिक्शा ड्राइवर ने सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर जो किराए के लिए जो गाड़ियां मिलती हैं उस गाड़ी में एक बैरून रियासत से ताल्लुक रखने वाला एक लड़का होने और उसके साथ एक लड़की होने की वजह से उसके साथ गुंडागर्दी करते हुए उसका हेलमेट या कोई चीज लेकर के पहले तोड़ देता है। उसके बाद कन्नड़ा जबान में कहता है कि किस तरह से जो है रिक्शे वालों को नुकसान पहुंच रहा है इन रैपिडो या इस तरह की किराए की गाड़ियों की वजह से कि बैरून रियासत से आकर के परदेसी होकर के जो है वो हमारे इस तरह से नाइंसाफी हो रही। अब जाहिर सी बात है कि बेंगलुरु में जो है बहुत ज़्यादा आउटसाइडर्स ही हैं और सब लोग जो है यहाँ वहाँ से कमाने के लिए आते हैं और इंटरनेशनल सतह की जो यहाँ पर कंपनियाँ भी हैं, कारखाने भी हैं। लेकिन इस ड्राइवर की गुंडागर्दी को लेकर के इसने जो शेयर किया है उसको लेकर के जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है और इस रिक्शा ड्राइवर के खिलाफ भी जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए बेंगलुरु सिटी के पुलिस अफसरान को जो है इस वक्त ये वीडियो टैग की गई है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि कश्मीर में अब्दुल रशीद डार, जिन्हें 3 माह कबल हिंदुस्तानी फौज ने हिरासत में लिया था, बुध के रोज वो मुर्दा हालत में पाए गए थे। उस वक्त से लापता बताए जा रहे थे। सैकड़ों कश्मीरी इस मौत के खिलाफ इस जो है एहतिजाज में आ रहे हैं और अहले खाना ने हिंदुस्तानी फौज के जरिए इसका बयान जारी किया और कहा कि जो है इनका कत्ल किया गया है। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी की जो है 3 महीने पहले जिसको फौज ने उठाया था, कैद में लिया था, हिरासत में लिया था, उसकी अगर डेड बॉडी मिलती है, उसकी लाश मिलती है, मुर्दा हालत में अगर वो पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो है उसका शक यहाँ की फौज की जानी भी जाएगा। यही वजह है कि यहाँ के लोग मुश्तिल हो गए और अब्दुल रशीद डार के घर के सामने नारेबाजी करने लगे और क्या नारे लगा रहे हैं वो आप इसको खुद थोड़ी देर के लिए सुन लें। मैं फिर दीगर खबरों के साथ लौटता हूँ। कितने शहीद मारोगे, कितने रशीद मारोगे, कितने रशीद मारोगे, कितने शहीद मारोगे, कोई बात, कोई बात, इस्लाम, 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 नाराए तकबीर, नाराए इस्लाम, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है या बदलने की तैयारियां हो रही है। जो भी हो रही, जो साजिश रची जा रही है, बैठकर किसी का नाम बदलने से तारीख तो नहीं मिटाई जा सकती, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब हुक्मरानी किसके हाथों में है वो तो आप जानते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मुताबिक। अब तो शिवसेना ने हद ही कर दिया और उसने मुतालबा रख दिया कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को हैदराबाद मुंतकिल किया जाए। हुक्मरान शिवसेना के रुकन असेंबली संजय श्रिष्ट ने आज मुतालबा किया कि छत्रपति संभाजी नगर में वाक़े मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हैदराबाद मुंतकिल किया जाए। शहर के एमएलए शिरसाद की इंदिरानी कॉल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हफ्ते को छत्रपति संभाजी नगर के नाम की तब्दीली और पुराने औरंगाबाद में वापस जाने के खिलाफ शुरू की गई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के एहतिजाज के जवाब में आई है। अगर उन्हें औरंगजेब से इतनी ही मोहब्बत है तो उसकी खबर को हैदराबाद मुंतकिल कर दे, उन्हें वहां यादगार बनाने दे या जो चाहे वो करें, कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन इस तहरीक को बंद कर दें। शहजाद ने ऐलान किया कि शिंदे ग्रुप में शामिल है। मकामी एआईएमआईएम के सदर शारिक नक्शबंदी ने एसएस के लीडर के मुतालिबे को सिर्फ सियासत के तौर पर मुस्तरद कर दिया। अपने अपोजिशन को मुस्तहम करने के लिए बरादरियों के दरमियान बदअमनी पैदा करने का इरादे के तौर पर उनको जाहिर किया है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, आजकल औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो है ये मौजू बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है जब से इसका नाम बदल दिया गया है।
नाज़रीन गिरामी, शब बारात आने वाली है और अपने आप को संभालें, अपने घर के नौजवानों को संभालें। इस बार हर रियासत की पुलिस बहुत ही ज़्यादा और बिलखुसूस स्पेशल ब्रांच की पुलिस जो है मुतहर्रिक है। हर मस्जिद के सामने या इस तरह के इलाके जहां पर मुमकिन है कि रात के वक्त में राइडिंग हो, बाइकिंग हो और जो कुछ भी करते हैं हमारे लड़के इबादत के नाम पर, अगर करेंगे तो आप फंसा लिए जाएंगे और पुलिस आप पर जो है सख्त नजर रखे हुए है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच की तरफ से दिल्ली की तमाम 15 जिली पुलिस को जारी करदा एक एडवाइजरी में 7 मार्च की रात को इलाके में चौकन्ना रहने, शरपसंदों पर खुसूसी नजर रखने को कहा गया है। पुलिस को इलाके के मजहबी रहनुमाओं और रजाकारों से राब्ते में रहने को भी कहा गया है। अमर उजाला ने इसकी रिपोर्ट की है। स्पेशल ब्रांच ने तमाम जिली पुलिस से कहा है कि अपने इलाके में वाक़ई मसाजिद और कब्रिस्तानों के करीब मुनासिब पुलिस एहलकार और PCR वैन तैनात रखें। मकामी डिप्टी कमिश्नर पुलिस से कहा गया कि इवेंट के मुंतजमीन से राब्ते में रहें। तमाम पुलिस अफसरान को हिदायत की गई कि मोटरसाइकिल पर स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। तो नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि इस दिन जो है शब बारात के नाम पर बहुत सारे हमारे कुछ नौजवान जो है वो राह रास्ते हट जाते हैं। इबादत मस्जिद में जाकर के करने के बजाय वो जो है बाजारों में घूमते हुए हड़बोंग मचाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा जो है इससे परहेज करने की ज़रूरत है, इसलिए कि हर साल इस तरह की कई वाक़यात सामने आते हैं जिसमें नौजवान को इस तरह करते हुए, बाइकिंग करते हुए पुलिस हिरासत में लेते हुए भी और कई हादिसात की भी खबरें हम लोगों के सामने आते हैं। ऐसे में अहले खाना की, घर के सरपरस्तान की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने औलाद को इस तरह की चीज़ों से परहेज करे और उनको बताए रखे, और जहाँ जहाँ पर भी ये जलसे वगैरह मुनाकिद किए जाते हैं वहाँ पर भी जो है मसाजिद से इस तरह के ऐलानात होते रहें। इधर नाज़रीन गिरामी, रियासत की बीजेपी हुकूमत कर्नाटक में नफरत और फसाद फैलाने वाले मुल्जिमान को उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस ले कर रिहा कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने इसकी रिपोर्ट पेश की है। उसने कहा है कि केस वापस लेने के मामलात की छानबीन की गई है। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2019 में इख्तिदार में आने के बाद से बीजेपी हुकूमत मुल्जिमान को अंधाधुंध रिहा कर रही है। सिर्फ अक्टूबर 2022 में ही 34 मुकदमात में मुल्जिमान को बरी करने पर पुलिस, महकमे कानून और महकमे इस्तिगासा के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया गया। इन तमाम मुल्जिमान पर नफरत अंगेज तकरीर और फिरकावाराना फसादात फैलाने का इल्ज़ाम था। इन 34 केसों के अलावा दी इंडियन एक्सप्रेस ने 2019-2009 के दौरान 10 साल की मुद्दत में केसेस का जायजा लिया। इन मुल्जिमान में से संघ परिवार से जुड़े ग्रुपों के 113 कारकुन 16 मुकदमात में मुलव्वस हैं। हिंदू जागरण वेदी के बुनियादी तौर पर विश्व हिंदू परिषद से वाबस्ता है। उसके अलावा बजरंग दल है, श्री राम सेना है। बाकी 18 केस किसानों और दीगर ग्रुपों के एहतिसास से मुताल्लिक है, जिनमें 228 अफराद शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक महकमे दाखिला ने 1 अक्टूबर 2022 को हुक्मनामा जारी किया, जिसके आड़ में मुल्जिमान को रिहा कर दिया गया। ताहम उसने महकमा प्रोसिक्यूशन को हिदायत की कि वो 34 मुकदमात की वापसी के लिए मुताल्लिका अदालतों में जरूरी दरखास्त दे। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो नफरत भड़का रहे थे, माहौल में जो है पूरी तरह से नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी जो है उनको बाहर लाने के लिए, रिहा करने के लिए इस तरह के फैसले ले रही है, जिस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा। नाज़रीन, सीटी रवि जो हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए बदनाम हैं, वो उर्दू जबान की तारीफ करते हुए नजर आए। दरअसल चिकमंगलुरु में उर्दू जबान से वाबस्ता एक उर्दू अदब चिकमंगलुरु की जानिब से ऑल इंडिया पोएट्स कॉन्फ्रेंस 2023 का इनेकाद किया गया था, जिसमें जो है इस वक्त मेहमान खुसूसी बने हुए थे। तो उन्होंने उर्दू ज़बान की तारीफ करते हुए कहा कि उर्दू ज़बान जो है अपने आप में एक शनात और अपने आप में एक मजबूती रखे हुए है। ये कहते हुए बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने जहाँ पर तस्करा किया, और वो भी सीटी रवि की ज़बानी उर्दू ज़बान की ये तारीफ सुनकर के जो है ये खबर ही सुर्खी बन गई, और जो मुतअस्सिब लोग थे वो इसको सुर्खी के साथ जो है तनकीदी तज्जिए के साथ बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद भी करने लगे कन्नड़ा ज़बान में, सोशल मीडिया में। इधर नाज़रीन गिरामी, दलितों पर जुल्म सितम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी हावेरी में एक ताल्लुका आता है जिसका नाम है रानी बिनोर, और उसमें नंदीहल्ली नामी इलाके में सालाना एक त्यौहार होता है, अलग अलग नामों से, अलग अलग देवी के नाम पर। उस मौके पर जो है जलसे जुलूस हो रहे थे, तो दलित के लोग भी शामिल हो गए, और जो नाच गाना हो रहा था उस वक्त 2 अफराद के दरमियान में कुछ बातचीत हो गई। तो फिर वहीं से जो है
यहाँ के मंदिर में दाखिल होने का इल्जाम लगाते हुए दलितों को बुरी तरह से मारा गया है। न सिर्फ दलितों को मारा गया है, उन पर पथराव किया गया है, बल्कि इस त्यौहार के बाद भी उनकी गली में घुस करके उनके घरों पर पथराव किया गया, उनको मारने की कोशिशें की गई। इस तरह से नंदीहल्ली नामी इलाके में दलितों पर अपने आप को बड़े समाज बड़ी जात से कहने वाले, जो असल में सोच की एकदम गिरावट की आखिरी हद में ये लोग होते हैं, उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा इन पर जुल्म सितम करने की वजह से दलितों पर हो रहे जुल्म सितम को लेकर के एक बार फिर कर्नाटक में बहस शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि जो इस बार बीजेपी को सबक सिखा के रहेंगे। इधर नाज़रीन गिरामी, अभी हाल ही में बीजेपी की क्या हालत हो रही है कर्नाटक में। एक तो एमएलए अलग अलग बदनवानी में और गैर कानूनी पैसे में होते 40% कमीशन को लेकर के बदनाम है, तो वहीं पर अभी हाल ही में केआर नगर मैसूर जिले में इनका विजय संकल्प जुलूस निकला था। जाहिर सी बात है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, में बीजेपी को ही नहीं कहता, ये लोग लोगों को जमाने के लिए उनको पैसा दिया करते हैं या कुछ खाने का वादा करते हैं या कुछ देने का। तो ऐसे ही लोगों को जमा करने के लिए यहाँ लोगों को 400 रुपया देने की बात की गई थी और बीजेपी कारकुनान इसी तर्ज पर, इसी वादे पर लोगों को जमा किया। जाहिर सी बात है कि जब आप कोई जुलूस निकालते हैं तो आपको लोगों को जमा करना जरूरी है और पॉलिटिकल पार्टियां तो इसी पैसों के दम पर जो है ये सारे बड़े बड़े जहां पर आवाम जमा होते हैं उसमें 75% तो ये खरीदे हुए कारकुनान होते हैं, जमा होते हैं, कोई 400 लेके, कोई 800 दे, कोई कुछ और चीजें उनका लालच दे करके। इस मर्तबा बीजेपी ने गलत कर दिया। जिन लोगों को वादा किया था उन लोगों को पैसा नहीं दिए, तो जाहिर सी बात है कि आप वादा करके लोगों को लाएं और उनको पैसा भी ना दें और खाना भी ना दें तो मुश्किल हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारी वीडियो वायरल हो रहे हैं चप्पल से मारने की और न जाने क्या क्या, वो वीडियो हम आपको यहाँ दिखा नहीं सकते। अलबत्ता जो है बीजेपी के ये झंडे जलाते हुए तस्वीर आप जरूर देख सकते हैं, ये असल में वीडियो से निकाली गई है। तो कर्नाटक में इस तरह से जो है बीजेपी के खिलाफ नाराजगी पाई जा रही है और यही जमीनी सतह पर पूरे भारत में बीजेपी के खिलाफ ऐसा इश्तिहाल है, लेकिन मीडिया आपको नहीं दिखाता। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।